Welcome to our new session that is regarding diplomatic immunities and privileges. It is one of the most important topic when it comes to public international law. So let us start. So first of all, we would like to understand that who is diplomat and why and for what purpose he is sent. If there is one word that we should understand, that is diplomacy. Diplomats are sent for the act of diplomacy by one state to another state. They are the special representatives by the sending state. They are dispatched from one state who call them that these representatives will be our diplomats, and we are sending them for some special functions. और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो होता है बेसिकली फ्रेंडशिप को, फ्रेंडली रिलेशंस को मज़ीद स्ट्रेंथन करना. Since ancient times, exchange of convoys has been in practice and protection was always granted to them. And we have seen it also in distant past. Even when there was the time of Greeks, Romans, in Hindu civilization, or even in Chinese civilization, we have seen it. But when it comes to modern international law, Congress of Vienna of 1815, this Congress, at this point of time, it was the very first time actually when all of those customary rules that were codified into treaties, into this convention. We have talked about it in several times in our previous sessions that customary international law is now losing its importance. Why? Because conventions, so the law in the written form, is now taking place of past customs. So here we are also going to talk about this thing, that how past customary rules changed into a convention. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 is the current legislation in this regard, whereas its preamble suggests that customary rules shall solve the problems not enumerated in the said convention. So again, this convention has actually codified the previous customary international law, and it has also stipulated itself that if there is a problem, there is a dispute which is not being discussed in this convention, then the customary international law will deal with it. यानी जहाँ पे आपके पास कन्वेंशन नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर जो दूसरी चीज़ है वो आप कस्टम देखते हैं कि अगर कन्वेंशन नहीं है वहाँ पे तो कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ उस डिस्प्यूट के बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में क्या कहते हैं, आपने ये देखना होता है. So first of all, we should understand what are the classifications of diplomatic agents. So under Article 14 of this convention 1961, अब हम जिस कन्वेंशन की बात कर रहे हैं बार बार, वो यही डिप्लोमेटिक कन्वेंशन है जो कि वियन्ना में 1961 में बना था. इस कन्वेंशन के मुताबिक या तो एम्बेसडर्स हैं पब्लिक एजेंट्स, यानी डिप्लोमेटिक एजेंट्स, या फिर कोई स्पेशल एनवॉइस हो सकते हैं, या मिनिस्टर्स हो सकते हैं जिनको हेड ऑफ स्टेट भेजता है, या फिर शार्ज दी फेयर. शार्ज दी फेयर ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसी है. ये वो लोग होते हैं जो जब एम्बेसडर्स या एनवॉइस की कोई सीट्स हैं या काउंसिल्स की सीट्स जो हैं व्हेन दे आर वेकेंट, देन फॉर टेम्पररी बेसिस व्हेन दीज ऑफिसर्स आर सेंट इन देयर प्लेसेस, तो उनको शार्ज दी फेयर कहते हैं. दिस इज अ बेसिकली फ्रेंच वर्ड. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 of this convention. So what are the functions? What are the basic functions of diplomats? What can be their functions? First of all, they represent their own state, the state which is sending them. They protect the rights of their own citizens
इन दैट फॉरेन स्टेट वेयर दे आर बीइंग डिस्पैच्ड, यानी कि अगर पाकिस्तानी एम्बेसडर इंडिया में मौजूद है तो वो वहाँ पे मौजूद इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। Negotiations in case of any disputes and otherwise to improve friendly relations among states। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट वही बात जो हमने की कि वो है फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना, और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट निगोशिएशंस जो हैं वो डिप्लोमेटिक एजेंट्स ही करते हैं, बिकॉज दे आर एम्पावर्ड बाय देयर ओन स्टेट्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द डेजिग्नेटेड स्टेट, अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर कोई अमेरिकन एम्बेसडर है या कोई जर्मन एम्बेसडर इफ ही इज इन पाकिस्तान, फॉर श्योर ही विल बी observing all of the events that are happening in Pakistan, and that is to perform other consular functions such as issuance of visas, passports and other documents। अब देखना इन सारी चीज़ों के अलावा वो अपने सिटीजन्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनको पासपोर्ट्स, उनको दूसरे सर्टिफिकेट्स, शायद बर्थ सर्टिफिकेट्स दे रहे हों या कोई डेथ सर्टिफिकेट्स वो दे रहे हों उनको, इसी तरह जो फॉरेनर्स होते हैं उनको वीज़ाज वगैरह देना, ये सब काम डिप्लोमेटिक एजेंट्स का होता है। Now question comes, what is the basis of diplomatic immunity and privilege? First theory is about extraterritoriality theory। सिंपल इसमें यह है कि डिप्लोमैट्स को यही समझ आता है कि जैसे वो होते तो वो होस्ट स्टेट में, लेकिन समझा यह जाता है कि वो होस्ट स्टेट में नहीं है, वो अपनी ही स्टेट में मौजूद है। यानी कि अगर कोई अमेरिकन फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में डिप्यूटेड है तो यही समझा जाएगा कि वो अमेरिका में है। अब ये जो फिलॉसफी थी या ये जो थ्योरी आप कह लें, दिस थ्योरी डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन, और इसमें ये केस लॉ भी आर वर्सेस टर्नबुल पेट्रोव 1971, ये ऑस्ट्रेलिया में जो रशियन एम्बेसी थी वहाँ पे 71 में आप ये समझ लें कि चंद जो शरपसंद अनासर थे उन्होंने बॉम्ब्स जो थे वो थ्रो किए रशियन एम्बेसी में, और जब वहाँ पे वो केस उन पे चला तो उन जो क्रिमिनल्स थे या जो एक्यूज थे उन्होंने ये प्ली ली कि ये रशियन एम्बेसी ड्यू टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, इसलिए आप ट्राई नहीं कर सकते हमें, यानी एक्यूज ने ये बात की। तो उस वक्त इस थ्योरी को गलत करार दिया गया और कहा नहीं, बेशक रशियन एम्बेसी के अंदर या रशियन एम्बेसी में जो एम्बेसडर्स या जो वो डिप्लोमेटिक एजेंट्स थे जिनको नुकसान पहुंचा या नुकसान पहुंचने का खदशा था, बेशक वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स नहीं है, लेकिन ये थ्योरीज पे काबिल अमल नहीं होती। तो ये मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी भी एक थ्योरी थी जो कि एक पास्ट की थ्योरी है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी थी, वो ये थी कि चूंकि ये डिप्लोमेटिक एजेंट्स हेड ऑफ स्टेट्स को या सॉवरन्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं तो समझा ये जाएगा कि ये डिप्लोमेटिक एजेंट्स खुद से सॉवरन ही हैं एक स्टेट के, एंड सॉवरन ऑफ द स्टेट ही कैन नॉट बी इम्प्लीटेड, ही हैज़ कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। So, if we consider a diplomatic agent as a sovereign of a state, for sure he will have all the immunities and privileges. But this is also not the case, because we see कि sovereign की immunity का level या sovereign के privileges का level diplomat के privilege या उसकी immunity से कहीं दर्जे ज़्यादा है। उसके प्रोटोकॉल में डिफरेंस है। जो प्रोटोकॉल एक sovereign को मिलता है वो उस डिप्लोमेट को, उसी मुल्क के डिप्लोमेट को नहीं मिलता, तो इसलिए ये थ्योरी भी गलत करार दी गई। सो फाइनली विच इज एन एक्सेप्टेड थ्योरी राइट नाउ, दैट इज फंक्शनल थ्योरी, which states that diplomatic agents are given immunities because of the nature of their functions. Why? Because they are specifically sent by the sending state to perform such subspecial functions. And what are those special functions? Diplomacy. तो डिप्लोमेसी के लिए जिस एजेंट को भेजा जाएगा उसको ऑटोमेटिकली ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ दैट फंक्शन इम्यूनिटी ग्रांट की जाती है। सो वन शुड अंडरस्टैंड दैट फंक्शनल थ्योरी इज द थ्योरी विच इज
presently working and explaining the basis of immunity and privileges. Article 29 of this convention, it states that the person of a diplomatic agent shall be inviolable. It means that you cannot arrest him, you cannot detain him. Such immunities are also given to the staff of the mission, या उनका कोई क्लर्क उनके साथ आया है या उनका कोई कैशियर उनके साथ आया तो उसको भी ये दिया जाएगा, ये इम्यूनिटी मिलेगी, उसको भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते. इम्यूनिटी इन द सेम वे विल बी ग्रांटेड टू द फैमिली मेम्बर्स यानी कि जो एक एम्बेसडर आया है या काउंसिल या जो भी कोई आया है, जो भी एजेंट आया है, उस एजेंट की फैमिली को भी अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाता इफ दे आर नॉट द नेशनल्स और परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द रिसीविंग कंट्री. अब अगर देखें, अगर कोई एक शख्स, कोई उस डिप्लोमेटिक एजेंट का कोई फैमिली मेम्बर वो यहाँ पे यानी कि रिसीविंग कंट्री में आके परमानेंट रेजिडेंस इख्तियार कर लेता है या वहाँ पे वो एक आम फॉरेन की तरह रहना शुरू कर देता है, तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर तो उसको ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगी. या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसका फ़र्ज़ किया कोई एम्बेसडर आया और उसका बेटा वो लेट्स से ही गोज़ टू अ कॉलेज एंड ही स्टेज इन अ हॉस्टल, तो वहाँ पे अगर उससे कोई काम सरजद होता है तो उस सूरत में चूँकि वो ही इज़ नॉट लिविंग अंडर the same roof, he is not sharing the same residence as of diplomatic agent, as where diplomatic agent is living, then he will not be given privileges and immunities. तो ये आर्टिकल 37 जो है वो बताता है. आर्टिकल 30 provides that private residence of a diplomatic agent shall also enjoy inviolability. अगर कोई इसकी प्राइवेट जगह है जहाँ पे वो रहता है, जो उसका घर है जहाँ पे वो रहता है, नॉर्मली वो वहीं पे अगर उसने रिहाइश इख्तियार की हुई है तो उस जगह को भी और उस शख्स को भी जो वहाँ पे रह रहा है वो जगह इम्यून होगी, इनवायलेबल राइट उसको मिलेगा. इम्यूनिटी फ्रॉम नेशनल, म्यूनिसिपल एंड रीजनल टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज, आर्टिकल 34. डिप्लोमेटिक बैग शुड नॉट बी ओपनड और डिटेन्ड. And if it has to be opened, it should be done before that agent whose bag is that. जिस शख्स का वो बैग है उस शख्स के सामने ही ये बात, वो बैग खोला जाएगा. ये आर्टिकल 27 आर्टिकल 36 में ये बात बयान की गई है. इधर आर्टिकल 31 का सब आर्टिकल 2 है दैट लेज डाउन द डिप्लोमेटिक एजेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस. उसको कहीं पे एज अ विटनेस कॉल नहीं किया जा सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे. Either Article 27 of Vienna Convention lays down that freedom of communication also involves the use of code messages and couriers. इसका मतलब ये है कि उनको जो फ्रीडम है उनकी कम्युनिकेशन का वो उनको ग्रांट किया जाता है. Article 26 empowers diplomatic agents to move and travel in the territory सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी जोन. फॉर ये अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक जो डिप्लोमेटिक एजेंट है वो उस मुल्क में हर जगह जाए, जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उसका जाना नहीं बनता. आर्टिकल 33(1) गिव्स द राइट टू वर्शिप एनी रिलीजन विद इन द मिशन प्रेमिसेस और रेजिडेंस. सिंपल है. आर्टिकल 31 सब सेक्शन 1 आफ्टर मेंशनिंग द इम्यूनिटीज फ्रॉम द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, it mentions the immunities from civil jurisdiction with 3 exceptions. अब देखें इसमें ये बात है कि क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन तो उसको हमने भी बात कर ली कि अरेस्ट किया जाता, डिटेन नहीं किया जा सकता, लेकिन सिविल जो जुरिस्डिक्शन है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. अगर वो शख्स कोई सेपरेट प्राइवेट प्रॉपर्टी लेता है, उसमें वो किसी शख्स के साथ लीज का कोई एग्रीमेंट करता है, किराएदारी का कोई वो मुआहदा करता है, तो उस मुआहदे में चूँकि वो जब उसने मुआहदा किया एक आम शख्स के साथ, तो फिर उसने अपने आप को सिविल जुरिस्डिक्शन में पेश कर दिया. इसी तरह अगर उसकी सक्सेशन का कोई मामला है या उसने कोई वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी इसके अलावा स्टार्ट की हुई है,
वो वहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उसने, तो इस सूरत में भी उसको प्रिविलेज और इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, वो उसके बिजनेस को नहीं मिलेगी। कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स 1973 अगेंस्ट इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्सन्स एंड डिप्लोमेटिक एजेंट्स, दिस इज़ द कन्वेंशन जिसमें मज़ीद ये बात बयान की गई कि जो प्रोटेक्टेड लोग हैं, जो प्रोटेक्टेड अशख़ास हैं, उनको उनकी हिफाजत करना वो रिसीविंग स्टेट पे ये उनकी ड्यूटी होगी। इसमें मज़ीद आपको भी पता होना चाहिए कि जो एक एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या उनमें वहाँ पे मौजूद जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको भी होस्ट स्टेट अपने कब्जे में नहीं ले सकती। डिप्लोमेटिक एजेंट की हर चीज़, हर कानूनी दस्तावेज, हर जो डॉक्यूमेंट, उसको प्रिविलेज हासिल है। मज़ीद ये कि लिमिटेड इम्यूनिटी का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस किया गया, क्योंकि लंदन में 1984 में एक दफ़ा लीबिया की जो पीपल्स ब्यूरो था, वहाँ पे लीबियन आप समझ लें कि काइंड ऑफ एम्बेसी थी वहाँ पे, जो उनका कॉन्सुलेट या समझ लें आप, वहाँ से फायरिंग हुई और एक ब्रिटिश जो पुलिस वुमेन थी उसको मार दिया गया। अब चूँकि वो एक फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन की जगह थी, इसलिए पुलिस अंदर ना नहीं जा सकी, बट देयर वाज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। तो इसलिए जो है वो लिमिटेड इम्यूनिटी का भी एक सिलसिला है जो कि अब इतना पॉपुलर नहीं है। इन केस ऑफ हीनियस क्राइम्स सेंडिंग स्टेट में वेव ऑल द इम्यूनिटी ऑल्सो, अगर किसी शख्स ने कोई बहुत गलत काम किया तो ये कहा जा सकता है कि अब इसको इम्यूनिटी ना दी जाए। रिसीविंग स्टेट में ऑल्सो रिफ्यूज टू रिसीव एनी डिप्लोमेट ड्यू टू हिज पर्सनैलिटी और जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर मिशन, and in case of gross misconduct on the part of diplomat, the receiving state may ask him to leave by labeling persona non grata, यानी इसको नापसंदा शख्स कह के किसी एक डिप्लोमेट को बाहर भी निकाला जा सकता है, या किसी डिप्लोमेट को रिसीव करने से भी इनकार किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये लिबर्टी रिसीविंग स्टेट के ऊपर को दी गई है। ये नहीं हो सकता कि जो सेंडिंग स्टेट है वो किसी को भी भेजे। रिसीविंग स्टेट जो है उसमें अपनी रिजर्वेशन जो है वो कम्युनिकेट कर सकती है। सो व्हाट आर द केसेस व्हेन डिप्लोमेटिक मिशन कैन बी टर्मिनेटेड? सिजेशन ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स मौजूद हैं अगर वो स्टेट्स ही ना रहे तो ज़ाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक मिशन भी ख़त्म हो जाएगा। अकम्पलिशमेंट ऑफ फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए डिप्लोमेटिक एजेंट्स को भेजा गया अगर वो फंक्शन कंप्लीट हो जाए। रिकॉल बाय सेंडिंग स्टेट, जिस स्टेट ने भेजा है अगर वो उस डिप्लोमेटिक एजेंट को वापस बुला ले। ब्रेक आउट ऑफ वॉर, कि अगर जंग जो है वो दोनों जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान जंग छिड़ जाए। पर्सोना नॉन ग्राटा, नापसंदीदा शख्स कह के उस डिप्लोमेटिक एजेंट को निकाल दिया जाए, कि जो उस वक्त होता है नॉर्मली जब वो शख्स कोई बहुत या कोई ऐसा एक्ट कर दे जो एक्ट रिसीविंग स्टेट के नज़दीक उनकी सॉवरेनिटी पे हमला हो। पॉलिसी ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी ये इस तरह से है कि फ़र्ज़ किया अगर पाकिस्तान और इंडिया में जो कई दफ़ा होता है इस तरह कि अगर एक मुल्क किसी वजह से दूसरे मुल्क का डिप्लोमेट निकाल देता है तो फिर वो जो जिस मुल्क का डिप्लोमेट निकला होता है तो वो भी बदले में उसके डिप्लोमेट को निकाल देता है। तो ये भी एक एक्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी से भी डिप्लोमेटिक मिशन ख़त्म हो जाता है। देयर कैन बी काउंसिल, स्पेशल इन्वॉयस एंड इवन नॉन डिप्लोमेटिक एजेंट्स अपॉइंटेड बाय स्टेट इनटू अनदर स्टेट। देखिए काउंसिल्स के लिए तो एक अलहदा से जो है वो इम्यूनिटीज़ का और प्रिविलेजेस का एक अलहदा से कन्वेंशन भी है जो कि, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ डिप्लोमेटिक एजेंट्स के का जो है वो कन्वेंशन हम पढ़े थे, क्योंकि काउंसिल्स की जो इम्यूनिटी है उसका लेवल वो नहीं है जो कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स का होता है। अब इसमें जो एक केस लॉ है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी, दैट वाज बिटवीन यूएस वर्सेस तेहरान इन 1980,
जिसमें तेहरान में जो यूएस एम्बेसी थी उस पर कब्ज़ा कर लिया गया था, जिसके बाद वो उस पर एक बाकायदा एक वो काफ़ी अरसे तक का एक मतलब मोर देन 1 ईयर वो कब्ज़ा रहा। और आईसीजे ने इसके ऊपर फाइंडिंग ये दी थी कि जो रिसीविंग स्टेट है ये उस पर बाइंडिंग है कि मिशंस को वो डिप्लोमेटिक मिशंस को प्रोटेक्ट करे और उनको वो सारे के सारे राइट्स उनको वो प्रोवाइड करे जिन राइट्स को डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ की का जो कन्वेंशन है 1961 का उसके तहत दिए गए थे। So I hope this whole presentation was fruitful for you, because our main topic was the kinds of privileges and immunities that are granted to diplomatic agents. And one thing we have come across was that due to the specific functions that diplomatic agents perform, this is the basis of immunity and the privilege. So in case of any query, you may ask me the question. Thank you so very much.